Okay, welcome back. Now we are moving to the practicals. अभी तक थियरी सब कुछ समझ ली है. Now we are moving to practical questions. Now कर स्पाइरल पे आ जाओ. अभी कुछ भी लिखना नहीं है. फर्स्ट 2 सम्स बैक टू बैक, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है और सॉल्यूशन देखते जाना है. लिखने का टाइम आपको मिलेगा. करेक्ट. नाउ along with the practical questions I'll give the category also. ABC classification याद है ना, ABC कैटेगरी करते थे सब. A, B and C कैटेगरी वो करनी पड़ेगी ना, वो साथ में मैं बताता जाऊंगा. अकॉर्डिंगली कैटेगरी भी करते जाना. Go to the first question. Let us read the first question. याद कर लेते हैं एक बार जल्दी से. सेक्शन 22 से 27 का अपना डिस्कशन हुआ है. सेक्शन 22 बेसिस ऑफ चार्ज से लेके 27 डीम्ड डोनर तक हमने डिस्कस कर लिया. करेक्ट. नाउ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मतलब कैसे उसको सॉल्व करना है, कैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल इनकम फाइंड करनी है. फॉर दैट वी हैड डन 8 डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड वी हैड टेकन वन एग्जांपल, वन हाइपोथेटिकल एग्जांपल कि कैसे उसमें नेट एनुअल वैल्यू वगैरह कैलकुलेट करें. वो सब कुछ दिमाग में आ गया है ऐसा मैं अज्यूम कर लेता हूं. एंड नाउ टाइटन योर सीट बेल्ट्स एंड स्टार्ट. Read the first one. Question number 1 पे आते हैं. Mr. Sanjay let out his house property rent. It's a let out property. Mind well. Rent 12,000 per month. Municipal valuation 1,80,000. Compute gross annual value. That is a question. First question. Simple one. Category C. याद है वो नामकरण विधि वगैरह करते थे. सो पहले नामकरण करेंगे. नेम, मिस्टर संजय, प्रीवियस ईयर 1920, assessment year 2021. चल सबसे पहले व्हाट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी. सबसे पहली रिक्वायरमेंट है क्लासिफिकेशन. उसका क्लासिफिकेशन बराबर हो तो कैलकुलेशन बिकम्स इजी. सो व्हाट इज द यूज ऑफ द प्रॉपर्टी. क्वेश्चन में देख लिया, इट इज अ लेट आउट हाउस. इफ इट इज लेट आउट हाउस, हाउ टू कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम, हाउ टू कैलकुलेट द GAV NAV वगैरह. तो स्टेप 1 2 3. Step 1 municipal valuation or fair rent whichever is higher. Step 2 compare with standard rent whichever is lower. Whichever is lower जो आता है उसको बोलते हैं हम लोग reasonable expected rent. And then we compare reasonable expected rent in step 3 with actual rent and whichever is higher to be considered. याद आ गया सब कुछ. Very good. Now only municipal valuation is given. Fair rent, standard rent is not given. तो बाकी सब कुछ अगर not applicable है तो municipal valuation itself becomes your reasonable expected rent. So municipal valuation is your reasonable expected rent given 1,80,000. Actual rent 12,000 per month, so it is 1,44,000. With this directly we'll move on to step number 3. Step 3, reasonable expected rent or actual rent, ultimately whichever is higher to be considered. Reasonable expected rent 1,80,000. Actual rent 1,44,000. Whichever is higher 1,80,000. Sorry, 1,80,000 is your gross annual value GAV. फाइंड क्या करना था. GAV सिंपल. कैटेगरी सी एग्जाम्पल. इसमें कुछ भी दूसरा सोचने की जरूरत नहीं है. रीड द सेकेंड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ. कैटेगरी सी अगेन. लेट अस सी व्हाट इज देयर इन क्वेश्चन नंबर 2. मिस्टर अमर owns a house property. Fair rent 5 lakhs. Property let out 50,000 per month throughout the previous year. Compute gross annual value. Again it is a let out house. Only information is of fair rent. बाकी कोई information है नहीं. तो fair rent itself becomes your reasonable expected rent. Again category C. Let us quickly go to this. नामकरण विधि. Mr. Amar
previous year 1920, assessment year 2021. What is the classification of property? It is a let out house throughout the previous year. Throughout the previous year के लिए advisable mention करेंगे 12 months. 12 months. Okay. You are given fair rent. No other information. So fair rent is your reasonable expected rent. That is rupees 5 lakhs. Actual rent 50,000 per month. That is rupees 6 lakhs. With this we'll move to directly step number 3. Step 3 सीधे आ जाते हैं reasonable expected rent or actual rent, whichever is higher. Reasonable expected rent 5 lakhs or actual rent 6 lakhs, whichever is higher, that is equal to 6 lakhs. 6 lakh is what? GAV. फाइंड क्या करना है? GAV. आ गया सिंपल. दोनों सी कैटेगरी के एग्जाम्पल थे. सिंपल से एग्जाम्पल है, इसमें कुछ खास डिस्कशन की जरूरत नहीं है. सो अब आपका टाइम स्टार्ट हो गया है लिखने का फॉर 2 मिनट्स. क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, जिससे अच्छे से तुम लोग लिख पाओ. फाइन. Start writing fast, first and second. रेडी, आगे बढ़े. सी कैटेगरी का है भाई, जल्दी लिखो. मेक इट पास. ओके, लेट अस प्रोसीड फर्दर. बाकी क्या है, उतना खत्म कर अभी कुछ. चल क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. Read the third one. What is given? रुक्मणी. नाम से मन भर गया हो तो आगे पढ़े. क्या यार, कमन. रुक्मणी एज अ प्रॉपर्टी, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन 2,40,000. वो जितना ऊपर एस दिख रहा है वो रुपीज है, ऐसा समझ लेने का. आई नो यू आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड, बट स्टिल यू नो बड़ी बड़ी बुक में छोटी छोटी ऐसी प्रिंटिंग मिस्टेक होती है. ओके, 2,40,000. She let out to a bank for 30,000 rupees per month from July 2019. July 2019 से let out किया है. अपना previous year 1920 है, remember. For the month of April, May and June 2019, the property remained vacant. Property was vacant for April, May and June. Now here it is specifically said, question number 3 के अंदर specifically क्या बोला है? Property remained vacant. मतलब कि प्रॉपर्टी फर्स्ट 3 मंथ्स में वैकेंट था. अब पूछेगा कोई कि सर लेट आउट के पहले वैकेंट कैसे हो सकता है? आपने तो मना किया था. याद करो, मैंने मना नहीं किया था. मैंने क्या बोला था? प्रॉपर्टी कैन नॉट रिमेन वैकेंट आफ्टर सेल्फ ऑक्यूपाइड. सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है और खाली पड़ा है तो उसको वैकेंट नहीं बोलेंगे. नॉट ऑक्यूपाइड एंड इट इज सेल्फ ऑक्यूपाइड. बट इसने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि अप्रैल में एंड जून इट वाज वैकेंट.
अगर अप्रैल में एंड जून इट वाज वैकेंट ऐसा लिखा है, दैट मींस के अप्रैल के पहले, मतलब कि लास्ट ईयर दिस प्रॉपर्टी मस्ट बी द लेट आउट प्रॉपर्टी, मतलब कि ओरिजिनल क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी इज द लेट आउट प्रॉपर्टी, देन इट रिमेन वैकेंट फॉर 3 months एंड देन इट इज अगेन लेट आउट 30,000 rupees पर month. Correct? Again, no information regarding any fair rent or standard rent, so municipal valuation itself becomes your reasonable expected rent. इसको कैटेगरी बी में डाल दो. इसका कंप्यूटेशन देखते हैं. नामकरण विधि के साथ शुरू करते हैं. नेम, हाँ नाम तो याद रहेगा आपको, मुझे पता है. प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर. Okay. Municipal valuation of the property is your reasonable expected rent. It is given what? Municipal valuation of the property 2,40,000. Actual rent of the property 30,000 per month, but it remained vacant also. So let us compute directly step number 3, जिसके अंदर पूरा कैलकुलेशन देखते हैं. Reasonable expected rent or actual rent, whichever is higher. Reasonable expected rent is 2,40,000 or actual rent. Now what is actual rent? Basically it is 30,000 per month, मतलब कि पूरे साल का मिलना चाहिए 3,60,000, but due to vacancy, वैकेंसी की वजह से कितना नहीं मिला, तो वैकेंसी की वजह से 30,000 नॉट रिसीव्ड फॉर 3 months, दैट इज इक्वल टू 90,000. ओके, सो एक्चुअल रेंट इज 2,70,000. कंपेरिजन सेज whichever is higher. Whichever is higher is what? Whichever is higher is what? हाँ, बट वो क्लॉज सी था ना, इफ एक्चुअल रेंट इज लोअर ओनली टू, बट इसमें वो सब सोचना ही नहीं है. एक्चुअल रेंट अगर वैकेंसी माइनस कर दे तो भी एक्चुअल रेंट RER से ज्यादा है. सो सिंपल आंसर 2,70,000. ये क्या आया? ग्रॉस एनुअल वैल्यू. ग्रॉस एनुअल वैल्यू 2,70,000. सिंपल कैलकुलेशन. दिस इज कैटेगरी बी. लिख लो जल्दी से, मेक इट फास्ट. रेडी? ऑफ कोर्स रेडी. क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, गुड एग्जाम्पल, कैटेगरी बी. पहले एक बार तुम लोग ऐसे ही पढ़ो, फिर हम लोग साथ में पढ़ते हैं. अरे पढ़ने के लिए दिया भाई, जल्दी से एक बार पढ़ो. रीड द क्वेश्चन केयरफुली and give me the exact classification of property. What is the classification of property? अच्छे से पढ़ के मुझे बताओ. तब तक मैं करता हूं छोटी सी नामकरण विधि.
पढ़ लिया. What it says, Ramani owns a flat assessed by the local authority. Assessed by local authority का मतलब म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, म्यूनिसिपैलिटी अथॉरिटी की असेसमेंट. एनुअल वैल्यू 90,000. लोकल अथॉरिटी का एनुअल वैल्यू मतलब म्यूनिसिपल वैल्यूएशन 90,000. प्रॉपर्टी लेट आउट 7,500 पर मंथ से भाड़े पे दिया है. हाउएवर टेनेंट वैकेटेड द प्रॉपर्टी ऑन 30 सितंबर. 30 सितंबर को टेनेंट ने ये प्रॉपर्टी खाली कर दिया है. फॉर द मंथ्स ऑफ अक्टूबर टू जनवरी द फ्लैट वॉज वैकेंट. क्योंकि कोई नया टेनेंट मिला नहीं तो अक्टूबर से जनवरी देयर इज वैकेंसी. ओके, उसके बाद क्या हुआ? February 2020 onwards, new tenant, rent 10,000 per month, compute GAV. Correct? क्वेश्चन अच्छे से समझ लिया. Now what is the classification of property? क्लासिफिकेशन पे आ जाते हैं. नेम मिस्टर रमानी. क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी. आराम से मंथ वाइज क्लासिफिकेशन सोचो. मंथ वाइज क्लासिफिकेशन फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर. April to September, 6 months, it is actually let out at the rate of 7,500 per month. Next, October to January, it was vacant for 4 months. Then February and March, again let out for 2 months. This is at the rate of 10,000 per month. Okay, this is good classification of property. अच्छा classification है. अब कैलकुलेशन के ऊपर आते हैं. कैलकुलेशन कैसे करना है? How the calculation will be? म्यूनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी, दैट इज वैल्यू असेस्ड बाय लोकल अथॉरिटी. और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसी को बोलेंगे रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट. दैट कम्स टू, इट इज गिवन 90,000. म्यूनिसिपल वैल्यूएशन ऑफ द प्रॉपर्टी 90,000. एक्चुअल रेंट, तो एक्चुअल रेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा. लेट अस कैलकुलेट एक्चुअल रेंट फ्रॉम अप्रैल टू सितंबर. April to September, 7,500 for 6 months comes to 45,000. From October to January, that is the period of vacancy. Vacancy period हो तो उसमें रेंट मिलेगा नहीं, लेकिन मिलना तो चाहिए था. And we have to consider that vacancy loss also. तो वो वैकेंसी कैलकुलेशन के लिए पहले हम लोग लेते हैं 7,500. बेस्ट assumption इज लास्ट रेंट कंटिन्यू. 7,500 फॉर 4 months, रिसीवेबल वॉज 30,000. ये बात अलग है कि वैकेंसी की वजह से मिला नहीं है, उसको हम लोग देखते हैं कैसे ट्रीट करना है. देन फेब्रुआरी एंड मार्च, अगेन एक्चुअल लेट आउट 10,000 फॉर 2 months, 20,000. सब मिला के एक्चुअल रेंट विच इज रिसीवेबल फॉर द ईयर कम्स टू 95,000. ओके, नाउ व्हाट इज आवर स्टेप 3? स्टेप 3 पे आ जाते हैं. स्टेप 3 से इज रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर. Reasonable expected rent 90,000 or actual rent, and here some vacancy is also there. पूरे साल का actual rent कितना मिलना चाहिए था? तो 95,000. बट 30,000 नहीं मिला. कौन सा 30,000 नहीं मिला? वो वैकेंसी पीरियड वाला 30,000 नहीं मिला. 4 months पीरियड 30,000 नहीं मिला. सो माई एक्चुअल रेंट कम्स टू 65. माई कंपेरिजन सेज विच एवर इज हायर. So 90 or 65, whichever is higher is 90. But
माई एक्चुअल रेंट इज लोअर, 65,000 लोअर है ओनली ड्यू टू वैकेंसी, वो 30,000 की वैकेंसी की वजह से। अगर ये 30,000 वैकेंसी नहीं होता, हैड देयर बीन नो वैकेंसी, माई एक्चुअल रेंट वुड हैव बीन 95,000. सो इफ वो क्लॉज सी, इफ एक्चुअल रेंट इज लोअर and it is lower only due to vacancy, then actual rent to be considered as annual value even if it is a lower amount. So whichever is higher, even if comparison says whichever is higher, we will say 65,000 is my gross annual value as actual rent is लोअर, इज नहीं आया बराबर, एक्चुअल रेंट इज लोअर ओनली ड्यू टू वैकेंसी, अदरवाइज माई एक्चुअल रेंट वुड हैव बीन हायर. करेक्ट. So if property is very well classified, computation becomes easy. Correct? अब दिमाग में ऐसा कोई क्वेश्चन मत लाना कि सर म्यूनिसिपल वैल्यूएशन अगर 1 लाख होता तो क्या करेंगे वगैरह वगैरह. वी विल डील विद दैट काइंड ऑफ सिचुएशन लेटर. ऐसी सिचुएशन को हम डील करेंगे लेटर इन वन ऑफ द एग्जाम्पल. फिलहाल आपका काम लिखने का 3 मिनट का टाइम. क्वेश्चन नंबर 4 कैटेगरी बी. मेक इट फास्ट. जल्दी से लिखना शुरू करो. This 65 doesn't looks good yet. लोग लिखने का काम करो भाई, मैं मेरे हिसाब से थोड़ा उसको ब्यूटीफाई कर रहा हूं. अच्छा दिख रहा है, इसको भी थोड़ा करते हैं. Now it seems fine, perfect. Don't forget to write the last line, the most important line. Actual rent is lower only due to vacancy, otherwise it would have been higher. Ready? Definitely yes. Yeah, no. Make it fast. चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं. फिर से एक बार, यू रीड फर्स्ट, देन विल रीड टुगेदर अगेन. फाइन.
जल्दी से एक बार पढ़ो, तब तक मैं करूंगा नामकरण विधि। फाइन। तुम लोगों को पढ़ने के लिए बोले और तुम लोग देख रहे हो उसकी स्क्रीन पे क्या चल रहा है। क्वेश्चन पढ़ो ना भाई। नहीं, जब तक सर आप नहीं पढ़ोगे तब तक हम नहीं पढ़ते। मिस्टर राम दुराई owns a flat. Municipal valuation 1,20,000, that is your municipal valuation, no other information, it becomes your RER. ये तो अब दिमाग में सेट। लिविंग विथ हिज फैमिली, स्ट्रेंज, खुद की फैमिली के साथ रहता था। हाँ, सेवरल ईयर्स, बहुत सालों से। बाय जुलाई 2019 तक में उसने क्या किया है, कोई बड़ा तीर नहीं मारा। ही कंप्लीटेड कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बंगलो, उसने एक बंगलो बनाया। आप जैसा रईस इंसान है। 1 अगस्त शिफ्टेड टू द न्यू हाउस, 1 अगस्त से वो उसके न्यू हाउस मतलब बंगलो में रहने चला गया। ओके, फिर फ्लैट का क्या किया, जला दिया? नहीं, आगे देखते। August 2019 onwards, from August 2019 the flat was let out to his sister's family for a rent of 8,000 per month. सिस्टर की फैमिली को रेंट पे दे दिया। मैं यार बहन के पास भाड़ा लेता है, कैसा आदमी है। 8,000 पर मंथ, कंप्यूट ग्रॉस एनुअल वैल्यू, करेक्ट। चलो सबसे पहले फिर से क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन। हाँ, नामकरण विधि में नाम है मिस्टर राम दुराई। Classification of property from April to July specifically said it was self-occupied. Specifically लिखा है खुद फैमिली के साथ रहता था, बहुत सालों से उसमें रहता था। So April to July it was self-occupied for a period of 4 months. From August to March it is actually let out 8 months period at the rate of 8,000 per month. Clear? बिल्कुल सिंपल क्लासिफिकेशन। सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर सम पीरियड, लेट आउट फॉर रिमेनिंग पीरियड। गोल्डन सेंटेंस, डाइजेशन प्रॉब्लम वाला गोल्डन सेंटेंस। इफ यू आर ओनर, RER ऑलवेज एन्युअल। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस एक दिन के लिए भी लेट आउट कर दिया हो, पार्ट ऑफ द हाउस हो या फुल हाउस हो, पार्ट ऑफ द ईयर हो या फुल ईयर हो, इफ इट इज लेट आउट then it is not self occupied. If it is not self occupied, it is to be computed as per 23 subsection 1. Information regarding RER, municipal valuation, that is your reasonable expected rent, given 1,20,000. Actual rent 8,000 per month, but actual rent can be only for the let out portion and let out period. So actual rent can be only for 8 months period, that is 64,000. सीधे चले जाते हैं स्टेप 3 के ऊपर। RER और AR, whichever is higher. RER 1,20,000, no proportionate calculation allowed. Remember, इसमें कोई proportionate calculation allow नहीं है। proportionate calculation allow नहीं है, इसका मतलब पूरा 1,20,000 पूरे साल का वैल्यू टैक्सेबल होगा। कंपेयर विथ एक्चुअल रेंट 64,000। ये 9 कैसे आ गया, नजर लग गई तुम लोगों की। एक्चुअल रेंट 64,000, whichever is higher. So 1,20,000 directly 1,20,000 becomes your gross annual value. क्वेश्चन भी ग्रॉस एनुअल वैल्यू का है, इसको डाल दो कैटेगरी बी के अंदर और जल्दी से लिख लो विद इन 2 minutes।
चल रेडी, मस्ट बी रेडी बाय द टाइम। बहुत टाइम लगाते हैं। हो गया जैसे कि बालिक ना हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग क्लासिफिकेशन, बहुत ही मस्त क्लासिफिकेशन है। आराम से क्वेश्चन नंबर 6 को 2 बार पढ़ो, उसके बाद तीसरी बार हम लोग साथ में पढ़ेंगे। मेक इट फास्ट। श्री कृष्ण का नाम लेके श्री कृष्ण राव, रीड इट फास्ट। तब तक मैं करूंगा नामकरण विधि। कंटिन्यू। अब स्क्रीन पे कुछ भी नहीं देखना है, लिखना है नहीं, पढ़ना है। लिखने का टाइम मिलेगा। क्वेश्चन पढ़ो 2 बार, अच्छे से क्लासिफिकेशन सोचो। रेडी? अब साथ में पढ़ेंगे हम। श्री कृष्ण राव owns a house property in Chennai, East Chennai, in Chennai, वो तो समझ गए ना, ठीक है। Municipal valuation of the property is rupees 84,000. Previous है 1920 का municipal valuation. Property self occupied for 2 months. Let out 9,000 per month from June. Tenant vacate the property on 30 November. Property remained vacant for December and January. From February again it is let out 10,000 per month. Compute GAV. Very interesting classification. आराम से पहले मंथ वाइज क्लासिफिकेशन करते हैं। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी? मंथ वाइज। अप्रैल एंड May. For 2 months it was self-occupied. June to November. For this 6 months it was let out 9,000 per month. Next, December and January it was vacant था, yes, vacant for 2 months. Again February and March no, कुछ गड़बड़ है। Feb and March it was again let out for 2 months at the rate of 10,000 per month. Municipal valuation of the property is your reasonable expected rent. It was given 84,000. Okay, this is the information of property. मस्त classification है. Now let us calculate actual rent first and then we'll compare. Actual rent. Actual rent can be only for let out period and let out portion. So actual rent for the month of April and May possible नहीं है. जून से स्टार्ट होगा. From June to November it is 9,000 for 6 months. That is 54,000. December and January, that is a period of vacancy. Even for vacancy period, 9,000 expected for 2 months, 18,000. February and March,
Again, actually let out for 10,000 per month, 2 months, that is 20,000. In all, actual rent which is expected only for 10 months period, 92,000. Actual rent 92,000. ओके, क्या हो गया ये भाई? स्टेप 3 डायरेक्ट कैलकुलेशन पे आते हैं. रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर. रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट 84,000 और एक्चुअल रेंट expected 92,000. Due to vacancy lost 18,000, so actual rent comes to 74. Comparison says whichever is higher, so 84,000 is higher than the 74,000. Answer should be 74,000. 74,000 is your gross annual value. Reason actual rent is only due to, otherwise करेक्ट यार, परफेक्ट बोलते हो. सो 74,000 इज योर GAV और अपनी वो ही नोट एज एक्चुअल रेंट इज लोअर ओनली ड्यू टू वैकेंसी. Otherwise, actual rent would have been higher. So, if property is divided into different parts, if classification of property is proper, then calculation becomes easy. अच्छे से आपने क्लासिफिकेशन किया प्रॉपर्टी का, मंथ वाइज कितना अच्छा क्लासिफिकेशन किया, अप्रैल, मई, जून टू नवंबर, लाइक वाइज. अगर ये क्लासिफिकेशन बराबर हो तो कंप्यूटेशन बिकम्स इजी. और अभी आपका टाइम लिखने का थोड़ा लंबा है, तो 3 मिनट. ये जो मैं कैलकुलेट कर करके लिख रहा हूं, होपफुली आप लोग उसको चेक कर लेते हो कैलकुलेटर पे. बीच बीच में थोड़ा यूज करने का कैलकुलेटर का, एंड फॉर अ चेंज माइंड का भी. एक ही बार लिखना है, फास्ट, आजू बाजू ध्यान नहीं, सिर्फ लिखने में ध्यान. इसलिए मेरा चेहरा मैंने छुपाया है, सो यू कैन कॉन्सेंट्रेट.
ओके, गुड क्लासिफिकेशन, अच्छा एग्जाम्पल था, इसको कैटेगरी ए में रख दो। और इसी के साथ जुड़ा हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 विच इज इन कंटिन्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 को ही थोड़ा और आगे लेके जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर, साथ में ही कैलकुलेशन ले लेंगे। पहले एक बार जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। व्हाट इज देयर in sum number 6 above? If the municipal valuation of the property 1,20,000, what will be your answer? अगर म्यूनिसिपल वैल्यूएशन 120 होता तो सम नंबर 7, इसी को हम कैटेगरी ए में ही कंटिन्यू रखेंगे। इन क्वेश्चन नंबर 6, म्यूनिसिपल वैल्यूएशन, that is your reasonable expected rent 1,20,000. If your reasonable expected rent is 1,20,000, स्टेप नंबर 3 के ऊपर चले जाते हैं। इसमें बीच में एक टैक्स प्लानिंग है, लेकिन वो टैक्स प्लानिंग अभी नहीं। वो टैक्स प्लानिंग एक अच्छे 2-3 टैक्स प्लानिंग है, लेकिन अभी नहीं। वो हम लोग एक बार क्लासरूम में मिले तब करेंगे। फॉर द टाइम बिंग इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। सर इसमें कुछ हो सकता है, नहीं हो सकता है, इवेजन तो हम लोग कभी जिंदगी में सोचेंगे ही नहीं, पाप है। हम करेंगे टैक्स प्लानिंग, लेकिन वो कैसे टैक्स प्लानिंग होता है वो अभी डिस्कस नहीं करना है। इंटरमीडिएट लेवल पे है ना, फाइनल में भी तो आना है, थोड़ा फाइनल के लिए भी बाकी रखते हैं ना। ओके, स्टेप 3, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट or actual rent, whichever is higher. Now my reasonable expected rent is 1,20,000. Some issues with the pen will be solved, I think so. Yeah, 1,20,000 or actual rent. My actual rent same, 92,000. Vacancy loss same, 18,000. Because of this 74,000. Comparison, whichever is higher. Now what to do? बहुत ही इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। नाउ लिसन केयरफुली। अभी कुछ भी लिखना मत, आराम से सुनो और समझो इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज क्या क्या है, क्या क्या थी और क्या क्या नहीं है अभी। ओके, वैकेंसी का लॉस ऐसा लॉस है, इन फ्यूचर यू आर नॉट गोइंग टू रिकवर एनीथिंग आउट ऑफ इट। रिमेंबर अनरियलाइज रेंट, वो टेनेंट कहीं भाग गया था भाड़ा दिए बगैर, कहीं से आप उसको पकड़ के लाए, 2 कान के नीचे लगाया, उसने पैसा दे दिया। बट इन केस ऑफ वैकेंसी नॉट पॉसिबल। इफ इट इज अ वैकेंसी, कोई टेनेंट था ही नहीं, तो फ्यूचर में उसका कभी रेंट नहीं मिलने वाला है। सो वैकेंसी लॉस इज अ परमानेंट लॉस। सो डिफरेंट एक्सपर्ट्स, सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स, वर हैविंग देयर व्यूज। उनके कुछ व्यूज थे कि वैकेंसी लॉस ऐसा लॉस है जिसका फ्यूचर में रिकवरी नहीं आने वाले, तो उसका तो डिडक्शन मिलना चाहिए। सो व्हाट वाज द व्यू दैट आउट ऑफ दिस रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, अपने केस में है 1,20,000, ध्यान में रखना, साथ में क्वेश्चन नंबर 7 भी। रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट 1,20,000 है, तो एक्सपर्ट्स क्या बोलते थे कि ये जो 120 है उसमें से वैकेंसी का बेनिफिट या तो प्रोपोर्शनेट कर दो। प्रोपोर्शनेट तो अला भी नहीं है, एक्ट के वर्डिंग में ही नहीं है, ईयर टू ईयर ही होना चाहिए अपना रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट, तो वो तो 120 ही रहेगा। उसमें से वैकेंसी लॉस, इन दिस केस इट इज 18,000, 18,000 का डिडक्शन मिलना चाहिए, एंड 1,02,000 शुड बी कंसिडर्ड एज जीएवी। दैट वाज अ व्यू ऑफ एक्सपर्ट्स सिंस इयर्स, दिस वाज द व्यू। अब होना क्या चाहिए? एक्ट इज साइलेंट। क्लॉज सी, इफ यू रिमेंबर, फिर से एक बार याद कराता हूं, उसमें सिर्फ इतना ही लिखा था, अगर एक्चुअल रेंट आरईआर से कम हो, इफ एक्चुअल रेंट इज लोअर देन रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट ओनली ड्यू टू वैकेंसी, then actual rent to be considered as annual value. But if not, वो नहीं लिखा है। तो if not वाली जो सिचुएशन है वो ये है क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। तो if not में क्या करेंगे? तो if not के अंदर act was silent, so
एज पर दी एक्सपर्ट्स ओपिनियन ऑल वर क्लेमिंग वैकेंसी का डिडक्शन, और स्मार्टली क्या किया जाता था, सो कॉल्ड रेफरेंस बुक्स, नौकर को टच नहीं कर सकते वो लोग, डोंट वरी, यू आर विथ नौकर, नियर सर है। क्या किया जाता था, तो दे यूज टू कंपेयर, ध्यान इधर 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 की फिगर्स के ऊपर ही है ना, दे यूज टू कंपेयर व्हाट 1,20,000 और 92,000, दोनों में से हायर लेते थे, कितना 120, उसमें से वैकेंसी माइनस करते थे 18,000। बहुत सारे, I cannot name anyone, but so many authors are there, that is local level authors, those who used to copy from good reference books, आज की तारीख में भी यही करते हैं, जिसको ग्रेजुएशन लेवल पे गीता माना जाता है, ऐसी बहुत सारी बुक्स, यही सब है। बट आर्गुमेंट यहां पे एक बहुत ही सिंपल सा है कि गवर्नमेंट ने तो बोला था ना कि 120 लेना चाहिए, योर रेंट शुड बी रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू बी 1,20,000 इन अ ईयर, उतना तो लेना पड़ेगा भाई, अगर उससे भी कम चार्ज करते हो तो गुना ही है, एंड नोशनल इनकम विल बी टैक्सेबल। नाउ द फनी पार्ट इज कि अप टू द लास्ट अटेम्प्ट गीता में भी कुछ, गीता ICAI स्टडी मटेरियल कुछ नहीं लिखा था, बट थैंक गॉड इस बार थोड़ा क्लैरिफिकेशन है। इफ दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज देयर, स्ट्रेट अवे रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट कंसिडर्ड टू बी योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू। सो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो डायरेक्टली वी विल से 1 लाख, ये आ जाना भाई, काला ही तो है, 1,20,000 एज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। हम कोई वैकेंसी वगैरह का डिडक्शन क्लेम नहीं करेंगे, स्ट्रेट अवे 1,20,000 टू बी कंसिडर्ड एज ग्रॉस एनुअल वैल्यू। करेक्ट, क्लियर? सो एकदम सिंपल हो गया। अभी अगर एक्चुअल रेंट लोअर है ओनली ड्यू टू वैकेंसी, जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में देखा, बाजू में ही साथ में रखा है, सो स्क्रीन के ऊपर ही ध्यान रहे। क्वेश्चन नंबर 6 की सिचुएशन में क्या था, क्वेश्चन नंबर 6 की सिचुएशन में 92,000 एक्चुअल रेंट जो है वो 84 से ज्यादा था, तो अपना आंसर आ गया था 74,000। क्वेश्चन नंबर 7 की सिचुएशन में क्या है, 1,20,000 है, 92,000 is lower than 120. In that case, our answer should be straight away 1,20,000 gross annual value. I am sure you are 100% clear now. अगर एक्चुअल रेंट वैकेंसी की वजह से ही लोअर हो तो ही एक्चुअल रेंट, अदरवाइज अगर ऑलरेडी वो लोअर हो तो डायरेक्टली रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट टू बी कंसिडर्ड एज एनुअल वैल्यू। राइटिंग टाइम 1.5 मिनट, मेक इट फास्ट। 1.5 थोड़ी ज्यादा हो गई, 1 मिनट 1 मिनट। इधर चला गया। Okay, ready with the next one. Six and 7 both category A. Ready.
नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन पढ़ लो, तब तक मेरी हो जाएगी नामकरण विधि. नाम क्या लिखा है सर? कुछ नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन मार्क करके छोड़ देते हैं. प्रीवियस ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 2021. क्वेश्चन पढ़ लिया है. अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में इसके अंदर डाल रहा हूं. व्हाट इज अ क्वेश्चन? इग्नोर फॉर द टाइम बीइंग. यू आर गिवन 3 डिफरेंट प्रॉपर्टीज. दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो दिखाता हूं. डिटरमाइन द नेट एनुअल वैल्यू इन फॉलोइंग केसेस, ऐसा लिखा है. क्वेश्चन को थोड़ा हम चेंज करेंगे. क्वेश्चन बाद में बोलता हूं, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. म्युनिसिपल वैल्यूएशन, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट, म्युनिसिपल टैक्स, इतनी इंफॉर्मेशन है आपके पास. प्रॉपर्टीज ए बी सी. प्रॉपर्टी ए के अंदर फेयर रेंट ऑब्वियसली समझ में आ गया होगा. प्रैक्टिकली, रेशनली, लॉजिकली 12 लाख नहीं 1,20,000 तो समझ में आ गया. उसको कैंसिल कर लो. बड़ी बड़ी बुक में छोटी छोटी प्रिंटिंग मिस्टेक होती रहती है. 1,20,000 में एक जीरो ज्यादा है, उसको मतलब कि 12 लाख लिखा है, उसमें से एक जीरो निकाल दो, 1,20,000. ओके. इंफॉर्मेशन इज देयर फॉर 3 प्रॉपर्टीज ए बी सी. नाउ आई एम डूइंग सम ड्राइंग वर्क, क्योंकि इसका सॉल्यूशन लेना है ना. तब तक के लिए आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आराम से सोच के रखो कि ये 3 प्रॉपर्टी है. रफ कैलकुलेशन आपके पास जो भी रफ पैड अवेलेबल है उसमें रफ कैलकुलेशन करो एंड आइडेंटिफाई एंड टेल मी which 2 properties can be considered as self occupied. क्वेश्चन फिर से एक बार, which 2 properties can be considered as self occupied, वो आप लोग आइडेंटिफाई करके रखो. तब तक मैं छोटा सा ड्राइंग वाला पार्ट खत्म करता हूं. करेक्ट है? ओके. ओके, सोच लिया. अब पहले कैलकुलेशन ले लेते हैं. स्टेप 1 2 3. अब स्टेप 1 2 3 तो सब कुछ याद ही है, सो फटाफट से देखते जाते हैं. स्टेप 1 म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट विच एवर इज हायर. स्टेप 2 1 और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर. स्टेप 3 2 और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर. जो हायर आएगा उसका जो आंसर है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू. उसमें से लेस
Municipal tax paid by owner. When nothing is said, assume paid. लेस करने के बाद जो आएगा दैट इज अवर नेट एनुअल वैल्यू. सब में थोड़ी स्केल पेंसिल की जरूरत है भाई, चलेगा, समझ में आ गया है. ओके, स्टेप 1 2 3 पहले देख लेते हैं, फिर आपके आंसर के ऊपर आते हैं. आप लोगों ने क्या आंसर निकाला है? 1,20,000. प्रॉपर्टी ए की बात कर रहे हैं हम लोग. प्रॉपर्टी ए, लेट अस चेक वंस. प्रॉपर्टी ए 1 lakh और 120 whichever is higher, compare with standard event 125 whichever is lower, 120 continue, actual and 1 lakh, compare with whichever is higher, 1,20,000 to be continued. So 120, step 1 2 and step 3 answer will be same. So GAV 1,20,000. ओके, प्रॉपर्टी बी के अंदर 80 और 60, 80 और 1 lakh, 80 और 1 lakh, 1 lakh, 80,000, 1 lakh, ultimately 1 lakh. Same way property C, 120 or 110, 120 not fixed, 120 continue, or 1 lakh, 120, 120, step 1 2 3 same. GAV 1,20,000. Perfect. Municipal tax, when nothing is said, assume paid by owner 15, 12, 7,500 respectively. 15,000 first property, second में 12,000, थर्ड में 7,500. ओके, लेस करने के बाद NAV comes to 1,05,000, सेकेंड में 88,000, थर्ड में 1,12,500. ओके, दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ योर नेट एनुअल वैल्यू. नेट एनुअल वैल्यू इंग्लिश में लिख लेते एक बार. This is what we have calculated as if the property is a let out property. ऐसा आप लोगों ने मान लिया है. Okay. Now tell me the answer. What is your answer? मेरा एडिशनल जो क्वेश्चन था उसकी बात कर रहा हूं. Which two properties can be considered as self occupied? AB के AC के BC. AB AC BC. फाइनली बोलो जल्दी से, दिमाग में आंसर आया होगा. शर्माने का नहीं, बोलने का, बिंदास. हाँ, व्हाट इज द आंसर? एक भी नहीं. ऑल प्रॉपर्टीज आर लेट आउट प्रॉपर्टी. तीनों में एक्चुअल रेंट दिया है. ये एक गूगली क्वेश्चन मैंने डाला था. When actual rent is given in all the properties are let out property. And if it is a let out house, why to assume let out? It is actually let out house. If it is let out house, computation is step 1 2 3 GAV minus municipal tax paid. NAV क्वेश्चन क्या है? NAV फाइंड करना. ये NAV हमने फाइंड कर लिया. दिस इज C कैटेगरी क्वेश्चन. जल्दी से लिख लो, 1 मिनट का टाइम है. अभी तक दिमाग जो यूज किया वो गलत किया था. मेक इट फास्ट. फिर से पूछा कैटेगरी. अरे कैटेगरी सी क्या यार, ऐसे क्वेश्चन में भी कैटेगरी पूछता है. इसको देखेगा क्या फ्यूचर में फिर से कभी? इट इज सी कैटेगरी. राइट इट फास्ट.
चलो भैया हो गया एक बार, दूसरी बार अभी नहीं लिखना है। ओके, बैक टू बैक क्वेश्चन नंबर 1 to 8 हमने लिया अभी तक। नाउ वेट 1 मिनट। अपना पिटारा याद है? कितनी सारी चीजें बताई थी पिटारे में से। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। तुम लोग पढ़ रहे हो अभी, एग्जाम्पल्स आंसर्स समझ लिया, फिर ऊपर देख के कॉपी कर रहे हो, लिख रहे हो। दिस इज अ ब्लंडर, यू शुड नेवर डू दिस। क्या करना चाहिए? आज के पिटारे में से सबसे खास चीज बता रहा हूं, ध्यान में रखना। कभी भी स्क्रीन पे या तो बोर्ड पे देख के लिखने का नहीं। क्यों? जब क्वेश्चन सर ने रीड किया, सर ने समझा दिया, सर ने पूरा आंसर बोर्ड के ऊपर डाल दिया है, तब अच्छे से दिमाग में सेट कर दो उसका क्या फॉर्मेट था, कैसे लिखा हुआ था, क्या आंसर है, सब कुछ अच्छे से एक बार समझ लो। समझने के बाद जब लिखने का टाइम मिलता है तब कभी भी कॉपी नहीं करना है। नेवर कॉपी। व्हाट यू शुड डू? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ के खुद ही गिनो, खुद ही गिन के अच्छे से प्रेजेंटेशन के साथ लास्ट में चेक कर लो कि जो बोर्ड पे है और आपका जो है सब बराबर है कि नहीं, मतलब कि सर ने बराबर गिना है कि नहीं। ओके ना? फायदा, एक बार का रिवीजन यहीं पे खत्म। एक क्वेश्चन सर ने समझाया, खुद समझा, गिना सर ने बोर्ड के ऊपर, वो भी देख लिया, उसके बाद खुद ही गिन लिया खुद की बुक में विदाउट कॉपिंग। सोचो आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ गया। एक बार का रिवीजन यहीं पे खत्म हो गया। करेक्ट? सो सबसे खास पिटारा है, किसी को देना मत। ओके? बोर्ड पे देख के लिखने का नहीं, स्क्रीन पे देख के लिखने का नहीं। जब लिखने का टाइम मिले खुद ही गिन लेने का फिर से एक बार। 1 टाइम रिवीजन इज डन। फिर फ्यूचर में रिवीजन करने बैठो तो ये जो ए कैटेगरी ये क्वेश्चन होगा ना, वो ए कैटेगरी क्वेश्चन भी आपको सी जैसा लगेगा, क्योंकि यू आर मास्टर देन। करेक्ट है? बेस्ट वन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 and 10 फिलहाल बाद में लेते, थोड़ा टिपिकल है। बीच में थोड़े क्वेश्चंस हम स्किप कर रहे हैं फॉर द टाइम बिंग, वो बाद में लेटर स्टेज पे लेंगे क्योंकि वो दूसरे किसी कंसेप्ट के साथ जुड़े हुए हैं। फिलहाल आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे, कैटेगरी बी। क्वेश्चन नंबर 13 आराम से 2 बार पढ़ो, तीसरी बार हम साथ में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कैटेगरी बी, मैं करूंगा नामकरण विधि, आप लोग पढ़ोगे क्वेश्चन ट्वाइस, फास्ट। बड़े स्क्रीन पे नामकरण विधि करते हैं। अच्छा, कीर्ति के नाम में थोड़ा लोचा है, रुको रुको। नामकरण विधि, नाम बराबर नहीं है। अब बराबर है। अच्छा, कंटिन्यू। क्वेश्चन पढ़ ले एक बार जल्दी से।
Mr. Kirti completed construction of house property on 31st January 2008 on a temple land. Temple land मतलब कोई मंदिर नहीं है, जगह का नाम है. House property is partly self-occupied, partly let out, partly. Out of the total floor area, 60% is let out for residential purpose on monthly rent rupees 6,000. Other portion self-occupied throughout the previous year. The most important wordings are throughout the previous year. पूरे साल के लिए प्रॉपर्टी का परफेक्ट क्लासिफिकेशन 60% is let out, 40% is self-occupied. Okay. Municipal valuation of the house 72,000. Municipal valuation is your reasonable expected rent when no other information is available like fair rent, standard rent नहीं दिया है. So municipal valuation is your RER. You are informed that the following expenses have been paid during the previous year. ये सब expenses दिए हैं, बहुत सारे expenses दिए हैं, देखते हैं कौन से दिए. Municipal tax rupees 6,000 लिखा है इंग्लिश में paid. So municipal tax is paid और ओनर नहीं पे किए हैं. ओके. रिपेयर्स नील, रिपेयरिंग का कोई खर्चा ही नहीं किया. ग्रेट. ग्राउंड रेंट 5,000, लैंड रेवेन्यू 2,400, कलेक्शन चार्जेस. लैंड रेवेन्यू मतलब वो इनकम नहीं है. लैंड रेवेन्यू मतलब जमीन महसूल मतलब वो देना पड़ता है लोकल अथॉरिटी को. कलेक्शन चार्जेस 1,200, इंश्योरेंस प्रीमियम 4,000. डिटरमाइन द टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. यू टू कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम. अभी तक तो हम लोग जीएवी और एनएवी में खेल रहे थे. Now taxable income. The question is regarding taxable income. So you have to prepare the statement showing taxable income from house property. Correct? पहले फिर से एक बार क्लासिफिकेशन देख लेते हैं प्रॉपर्टी का. इट इज 60% लेट आउट, 40% सेल्फ ऑक्यूपाइड थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर. बहुत सारे एक्सपेंसेस दिए हैं. याद करते हैं वो दिन जब हमने डिस्कस किया था सेक्शन 24 का फर्स्ट पार्ट. 30% नोशनल डिडक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एक्सपेंस इनकर्ड. कोई भी एक्सपेंस दिया हो म्युनिसिपल टैक्स के अलावा कोई भी एक्सपेंस अपने काम का नहीं है. हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन काम का है लेकिन इसमें दिया नहीं है. करेक्ट. सो बाकी जो भी एक्सपेंसेस है लाइक रिपेयर्स, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस प्रीमियम, कलेक्शन चार्जेस, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दैट 30% पोर्शन. सो व्हाट इज एक्चुअल एक्सपेंस गिवन? इग्नोर. सिर्फ एक्चुअल एक्सपेंस में काम के कौन से एक्सपेंस होते हैं? एक म्युनिसिपल टैक्स इफ इट इज पेड, दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन. बस दो ही एक्सपेंस काम के है, बाकी कोई एक्सपेंस काम के इसमें से नहीं है. इंटरेस्ट ऑन लोन दिया नहीं है, सिर्फ म्युनिसिपल टैक्स का कैलकुलेशन देखेंगे. करेक्ट. चलो अब पहले प्रॉपर्टी क्लासिफिकेशन से आगे बढ़ते हैं. लेट अस नाइसली क्लासिफाई द प्रॉपर्टी. बिल्डिंग बना देते हैं अपना एक छोटा सा घर. घर का क्लासिफिकेशन लेट आउट है 60% पोर्शन, सेल्फ ऑक्यूपाइड है 40% पोर्शन एंड इट सेज थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर मतलब कि 12 मंथ्स पीरियड. ऐसा क्लासिफिकेशन हम लोग एक बार देख चुके हैं. ओके. फॉर 12 मंथ्स लेट आउट 60%, सेल्फ ऑक्यूपाइड 40%. पहले करते हैं कैलकुलेशन फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस. सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन 40% पोर्शन का कैलकुलेशन करते हैं. एसओ सेल्फ ऑक्यूपाइड एनएवी इटसेल्फ रुपीज नील. एनएवी नील. उसमें से हमें टैक्सेबल इनकम का कैलकुलेशन करना है. सो एनएवी पे अटक नहीं सकते, आगे बढ़ना पड़ेगा. तो यहां से हम लोग इसको फॉर्मेट में ले लेते हैं. इक्वल टू को हटा देते. एनएवी नील लेस 30% ऑफ एनएवी वाला तो पॉसिबल नहीं है. सो डिडक्शंस के अंदर ओनली इंटरेस्ट ऑन लोन which is not given. So taxable nil. This is your taxable portion of self occupied house. सर म्युनिसिपल टैक्स तो माइनस किया ही नहीं, सेल्फ ऑक्यूपाइड में डिडक्शन नहीं मिलता है. भाई कितनी बार याद कराओ, याद आ गया? हाँ, म्युनिसिपल टैक्स इज नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन इफ इट इज अ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस क्योंकि एनएवी इटसेल्फ रुपीज नील. नाउ लेट अस कैलकुलेट फॉर लेट आउट. यहीं से देखते हैं आगे. लेट आउट पोर्शन. In case of let out house, which is 60% portion, you are given municipal valuation. But that municipal valuation is for the property. पूरे property का municipal valuation is, पूरे property का municipal valuation 72,000 दिया है. पूरी property का municipal valuation remember 72,000. But
अगर पूरे साल सिर्फ 60% ही लेट आउट है तो सिर्फ 60% वैल्यू ही रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट मानी जाएगी. सो RER रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट विल बी 72,000 60%, दैट इज इक्वल टू 43,200. कैलकुलेट करके देख लेना, मेरे कैलकुलेशन पे भरोसा मत रखना. यूज कैलकुलेटर, यूज योर माइंड समटाइम. ओके, डायरेक्टली स्टेप 3 पे आते हैं. रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट, विच एवर इज हायर. रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट 43,200 और एक्चुअल रेंट इज ऑलवेज फॉर लेट आउट पीरियड एंड लेट आउट पोर्शन 6,000 पर मंथ. ये 6 कैसे आ गया, पर मंथ है तो इंटू 12 आना चाहिए. 12 आया, नजर बुरी थी आपकी इसलिए बुरा दिखा. 72,000 विच एवर इज हायर. 72,000 इज योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू. क्वेश्चन GAV का नहीं है, क्वेश्चन है टैक्सेबल इनकम का, तो इसके आगे और कैलकुलेशन करना पड़ेगा. इसको लंबा खींचते हैं. ग्रॉस एनुअल वैल्यू 72,000 माइनस म्युनिसिपल टैक्स. इट इज स्पेसिफिकली सेड इट इज पेड बाय ओनर, सो इट इज पेड, सो नो प्रॉब्लम. म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन, पूरे घर का म्युनिसिपल टैक्स 6,000 है, लेकिन लेट आउट पोर्शन तो 60% ही है. सो म्युनिसिपल टैक्स 6,000, 60% पोर्शन 3,600. म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन होगा 3,600. सो NAV नेट एनुअल वैल्यू कम्स टू 68,400, 68400. लेकिन कैलकुलेशन टैक्सेबल इनकम तक करना है, सो लेस deductions. In deductions we have only 2 deductions. 2 ही deductions थे अपने. एक 30% of net annual value, that is your standard deduction. Standard deduction 68400 का 30% 20520. बराबर कैलकुलेशन है ना, देख लेना एक बार. दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन. इंटरेस्ट ऑन लोन इसमें दिया नहीं है, सो टैक्सेबल इनकम टैक्सेबल 47,880. परफेक्ट. सेल्फ ऑक्यूपाइड 40% पोर्शन, लेट आउट 60% पोर्शन. सेल्फ ऑक्यूपाइड का टैक्सेबल इनकम नील हो गया, लेट आउट का टैक्सेबल इनकम 47,880 हो गया. सपोज द क्वेश्चन इज ऑफ 6 मार्क्स. इतना कैलकुलेशन कर लिया है आपने, कितने मार्क्स मिलेंगे? 0. क्यों? क्योंकि टैक्सेबल इनकम पूछा है और प्रॉपर्टी में एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है या तो एक से ज्यादा क्लासिफिकेशन है, तो ये सब वर्किंग का पार्ट ही माना जाएगा. लास्ट में स्टेटमेंट तो बनाना पड़ेगा. सो इसके बाद एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन मिलेंगे, स्टेटमेंट शोइंग टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. बड़ा सा स्टेटमेंट बनाएंगे 3-4 लाइन का. इसमें लिखेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, उसकी इनकम नील. अगर उसमें कुछ नेगेटिव इनकम होती तो लेट आउट के सामने सेट ऑफ कर देते. लेट आउट हाउस इनकम 47,880. सो अल्टीमेटली टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, फाइनल आंसर 47,880. अब आपके 6 कंफर्म, 6 मार्क आ गए. 4 मार्क का क्वेश्चन है तो 4 आ गए, 8 मार्क के तो 8 आ गए. इतना लिख लिया, हो गया काम खत्म. परफेक्ट. अब आपका काम लिखने का है. पहले अच्छे से अभी मैंने बताया, बोर्ड पे देख के लिखना नहीं चाहिए. फिर भी अगर कुछ फाइनली चेक करना हो कि डीआर सर ने बराबर गिना है कि नहीं, तो उसके लिए तो आंसर रखना पड़ेगा ना. तो अब मैं इसको एनलार्ज करूंगा थोड़ा.
अच्छे से लिख लो. लिखने का टाइम मैक्सिमम 3 minutes. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. स्क्रीन में बाजू में अगर कुछ जो आ रहा है या लिख रहा हूं वो बहुत ही काम का लिख रहा हूं, आप लोग अभी पूरा आंसर लिख लो. मेरी आवाज बराबर सुनाई देती है ना, मेरा मुंह देखने की जरूरत नहीं है, चलेगा. अभी स्क्रीन देखना है. बाजू में जो लिख रहा हूं वो जो थोड़ा ज्यादा काम का है उसके ऊपर जरा गौर फरमाना. योर फेवरेट. आई नो, मुझे पता है कि आप लोगों बहुत ही एक्साइटेड हो कि सर कुछ तो होमवर्क दो. कितना मजा आ रहा है क्वेश्चंस कैलकुलेशन करने में. खुद तो कुछ करने के लिए दो, तो दिया. लिया तूने, ले ले. क्वेश्चन नंबर 15 कैटेगरी बी एंड, अच्छा मतलब एक ही चाहिए ऐसा. ऐसा थोड़ी हो सकता है. सिर्फ एक क्वेश्चन से तो मन नहीं भरेगा तुम लोगों का. नीड मोर. बी कैटेगरी क्वेश्चन नंबर 15. दूसरा रखना है, नहीं रखना है, नेक्स्ट टाइम करना है. ठीक है, चलो एक करो, एक इनफ. क्वेश्चन नंबर 15 कैटेगरी बी, इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. ओ, मैंने ये बता दिया कि नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. दैट मीन्स कि आपकी राइटिंग स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी. अभी इसको थोड़ा रेड कलर डेंजर में हाईलाइट कर देते हैं. कैटेगरी होमवर्क. ये कैंसिल नहीं किया है, हाईलाइट किया है. हाईलाइट. लिखते लिखते कैलकुलेशन भी देख लेना, हाँ, कोई गड़बड़ ना हो. चलो, लास्ट 1 minute to write. Make it very fast. Okay, remaining interesting sums in next lecture. Till then, stay healthy. Bye. If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.